یہ 10 محرم الحرام جمعہ کا دن ہے۔ میدان کربلا میں ایک طرف 22,000 سے زائد یزیدی لشکر، ان کا سپہ سالار ایک سعید باپ کا شکی بیٹا، عظیم صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بدبخت اور لعین بیٹا عمر بن سعد، اور دوسری طرف نواسہ رسول جگر گوشہ زہرا بطول امام علی مقام امام حسین ابن علی اہل بیت اطہار اور جانثاروں کا لشکر۔ آج کربلا کی زمین کانپ رہی ہے اور امام صبر و رضا کا پیکر بن کر فوج یزید کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا مگر ان ظالموں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ صرف ایک خوش نصیب خطبہ حسینی کے بعد لشکر یزید کو چھوڑ کر امام علی مقام کے قدموں میں آ گرا، جس کا نام حر بن یزید الریاحی التمیمی تھا۔ میدان کربلا میں جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ ابن سعد دیکھ رہا تھا کہ امام علی مقام اور آپ کے بعض ساتھی باری باری یزیدی لشکر کے سامنے آ کر ان کی آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس طرح جناب حر جو کہ ایک دستے کے سالار تھے، وہ بھی یزیدی لشکر سے نکل کر امام علی مقام کے ساتھیوں میں شامل ہو کر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس نے جنگ میں مزید تاخیر کرنا مناسب نہ سمجھا کہ کہیں مزید لوگ بھی امام کی عظمت و فضائل سے متاثر ہو کر ساتھ نہ چھوڑ جائیں۔ اس نے اپنے غلام درید سے کہا کہ اپنے جھنڈے کو میرے نزدیک لاؤ۔ اس نے جب جھنڈا نزدیک کیا تو عمر بن سعد نے اپنی آستین چڑھائی، کمان میں تیر جوڑ کر امام حسین کے ساتھیوں کی طرف پھینکا اور پھر ان کی فوج سے بآواز بلند کہا، تم سب لوگ گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے ہی چلایا ہے۔ ابن سعد کی طرف سے پہلا تیر چلانا گویا اعلان جنگ اور جنگ کی ابتدا کرنا تھا۔ ابن سعد کی طرف سے پہلا تیر چلا کر اعلان کرنے سے اس کے سپاہیوں میں جوش و خروش پیدا ہو گیا اور انہوں نے بھی تیر برسانا شروع کر دیے۔ اس طرح گویا جنگ کا آغاز ہو گیا۔ پھر عربوں کے رواج کے مطابق دونوں طرف سے جنگجو ایک ایک کر کے ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ اب جنگ باقاعدہ شروع ہو چکی ہے۔ یہ میدان کربلا کا خونی منظر ہے۔ یزید ابن معاویہ کی فوج سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ امام حسین کے ساتھی ڈھالیں بن کر آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ قوم اشکیا سے ابن زیاد کے 2 غلام یسار اور سالم میدان میں آتے ہیں۔ امام کی طرف سے عبداللہ بن عمیر نکلے۔ ابن زیاد کے 2 غلاموں نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ تم کون ہو، واپس جاؤ اور ہمارے مقابلے میں زہیر بن قیون یا حبیب بن مظاہر کو بھیجو۔ جناب عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ غضبناک ہو گئے، غصے سے یسار کو مخاطب کیا، او بدکار عورت کے بیٹے، تم مجھے نہیں جانتے؟ تو میرے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہے؟ میں حسین کا سپاہی عبداللہ بن عمیر ہوں۔ پہلے مجھ سے لڑ لو، پھر بڑے بڑے بہادروں کو بھی بلا لینا۔ یہ کہا اور تلوار چلا دی۔ تلوار بجلی کی طرح چمکی اور اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ سالم نے ساتھی کا حشر دیکھا تو نیزہ تان کر وار کر دیا۔ عبداللہ بن عمیر نے ڈھال پر روکا، دونوں طرف سے وار ہوتے رہے، آخر سالم بھی واصل جہنم ہو گیا۔ یزیدی لشکر کا پورا دستہ پہنچ گیا۔ حسین کا اکیلا سپاہی عبداللہ بن عمیر تیغ و سنا کے جوہر دکھا رہا ہے۔ عبداللہ کی بیوی ام وہب بھی ساتھ تھی۔ شوہر کو گھرے ہوئے دیکھا تو بے قرار ہو گئی، لکڑی کی لاٹھی اٹھائی اور میدان کی طرف دوڑی۔ عبداللہ نے لڑتے لڑتے اسے دیکھا تو زور سے چلائے، اے ام وہب، واپس چلی جاؤ، یہ عورتوں کی لڑائی نہیں ہے۔ لیکن وہ نہ رکی۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی نے آواز دی، اے ام وہب رک جاؤ۔ ام وہب رک گئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تجھ پر رحمت کرے، جہاد عورتوں پر فرض نہیں ہے، واپس پلٹ جاؤ۔ عبداللہ بن عمیر دشمنوں میں پوری طرح گھر چکا تھا۔ تلواروں کی باڑ آ رہی تھی اور یوں ریگزار کربلا کا پہلا شہید داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی بیوی ام وہب بھی میدان کربلا میں شہید ہو گئی۔ بعض روایات کے مطابق جناب حر بن یزید الریاحی میدان کربلا کے پہلے شہید ہیں، اور بعض روایات کے مطابق جناب عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کے پہلے شہید ہیں۔ عبداللہ بن عمیر کو شہید کر دینے کے بعد ابن زیاد کے بائیں بازو کے چند دستے حملہ آور ہوئے تو امام علی مقام کے ساتھی زمین پر گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے اور نیزے اٹھا لیے۔
नेजों की अन्नियां सीधी दुश्मन के घोड़ों की गर्दनों तक पहुंच जाती थीं। कई एक घोड़े जख्मी हो गए और फौज अशकिया आगे बढ़ने के बजाय वापस लौट गई और फिर एक का मुकाबला एक से शुरू हो गया। इमाम अली मकाम का एक एक सिपाही इजाजत तलब करके मैदान में जा रहा है और अपनी शुजाहत के जौहर दिखा रहा है। जाबरी खानदान के दो नौजवान इमाम अली मकाम की खिदमत में हाजिर हुए। उनकी आंखों में आंसू जारी थे। इमाम ने फरमाया, इब्ने अखी क्यों रोते हो? अभी चंद लम्हों बाद तुम भी चश्मा कौसर पर पहुंच जाओगे। उन्होंने रोते हुए ही जवाब दिया, या इमाम, हम अपने लिए नहीं रोते, हमें तो आपकी मुसीबत पर रोना आता है। हमें तो इस बात पर रोना आता है कि दुश्मन ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, मगर हम आपके किसी काम नहीं आ सकते। काश हमारी हजारों जानें होती और हम बार बार आप पर कुर्बान होते रहते। इस तरह शायद इन खूनखारों का कलेजा ठंडा हो जाता और या इमाम आप बच जाते। इमाम अली मकाम ने फरमाया, मेरे बेटो, अल्लाह ताला तुम्हें इस नेक जज्बे की जजा अता फरमाए। हम सब एक ही मकाम पर जमा होने वाले हैं और यह मशीयत इलाहिया है जिसको हर हालत में तस्लीम करना ही पड़ता है। फिर उन्होंने मैदान में जाने की इजाजत मांगी। इमाम अली मकाम ने खुदा हाफिज फरमाकर इजाजत फरमा दी। दोनों नौजवान मैदान में आए, एक एक को बुलाते रहे और कत्ल करते रहे। दुश्मन ने बहादुरों की तलवार के जौहर देखे तो पूरा दस्ता भेजकर घेरे में ले लिया। हुसैनी सिपाहियों ने पूरी जवामर्दी से सिपाहियों के पूरे दस्ते से मुकाबला किया। वो दुश्मनों का मुकाबला भी कर रहे थे और बुलंद आवाज से अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलुल्लाह भी पुकारते जा रहे थे। बिलाखिर जिस्मों पर तीरों और तलवारों के कई जख्म खाने के बाद जामे शहादत नोश कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके बाद हजरत हंजला इब्न असद इमाम अली मकाम से इजाजत तलब करके मैदान जंग में आ गए। मैदान जंग में घोड़ा फेरते हुए कौम अशकिया को मुखातिब करते हुए फरमाया, मैं डरता हूं कि तुम पर कौम आद व समूद की तरह अजाब न मुसल्लत किया जाए। अभी इब्न रसूल के चंद साथियों की जानें राय खुदा में कुर्बान हुई हैं। अभी इब्न रसूल और आपका खानदान महफूज है और अभी भी वक्त है कि तुम खुद को अजाब इलाही से बचा लो। याद रखना, हुसैन को कत्ल करके तुम चैन की जिंदगी बसर नहीं कर सकोगे। जनाब हंजला अभी गुफ्तगू कर ही रहे थे कि उनके गिर्द कई तीर सनसनाते हुए आकर गिरे और साथ ही आवाज आई कि तकरीर खत्म करो। उसके बाद मुकाबला शुरू हो गया। हुसैन का सिपाही बड़ी जवामर्दी से लड़ता रहा और दुश्मनों को वासले जहन्नुम करता रहा और फिर कई दुश्मनों को कत्ल करके शहीद हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लश्कर यजीद जल्द अज जल्द उस जंग को खत्म कर देना चाहता था, इसलिए वो लोग बढ़ बढ़कर शदीद हमले कर रहे थे। उनके लिए यह ख्याल भी अफसोस का बायस बना हुआ था कि हमारी तादाद इस कदर ज्यादा होने के बावजूद इन चंद लोगों पर हम फतयाब क्यों नहीं हो रहे। अब उन्होंने फिर चारों सिमत से जबरदस्त हमला कर दिया। इमाम अली मकाम के साथियों ने अपने घोड़े छोड़ दिए और पैदल हो गए। इंतहाई जबरदस्त मार्का था। इमाम अली मकाम के कई साथी उस हमले में काम आ चुके थे, ताहम यजीदियों का हमला पसपा कर दिया गया था। उस मार्के में जनाबे हबीब बिन मज़ाहिर, अमर बिन खालिद, साद मौला व जब्बार बिन हारिस और मजमा बिन उबैदुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हुम को जामे शहादत नोश करना पड़ा। अब जंग इंतहाई शदीद दौर में दाखिल हो चुकी है। इमाम अली मकाम के बेशतर साथी जामे शहादत नोश कर चुके हैं, जिनमें पिसरान अकील और हजरत मुस्लिम बिन अकील के दो साहिबजादे भी शामिल हैं। दोपहर भी करीब आती जा रही है और जंग भी शदीद होती जा रही है। मैदान करबला में हर तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा है। जंग पूरे जोर शोर से जारी है। दोनों जानिब से एक एक दो नौजवान मैदान में आते हैं और तलवार के जौहर दिखाते हैं, मगर हुसैन इब्ने अली के बहादुरों का रंगे जमा मर्दी कुछ और ही है। उनमें से जो भी जाता है वो कई यजीदियों को वासले जहन्नुम करने के बाद उस वक्त शहीद होता है जब उसे फौज के कई दस्ते चारों तरफ से घेर लेते हैं। बसूरत दीगर अकेले के सामने जो भी आता वो जरूर कत्ल हो जाता। यजीदी फौज के दाएं बाजू के सिपा सलार अमर बिन अल हज्जाज ने यजीदियों को ज्यादा कत्ल होते देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अहमको, पहले ये तो अंदाजा कर लो कि तुम किन लोगों से लड़ रहे हो। ये इब्ने हैदर के साथी हैं और जान पर खेले हुए हैं। एक एक करके इनके मुकाबले पर न जाओ
सब के सब कत्ल हो जाओगे। एक के मुकाबले में एक मत जाओ और इकट्ठे होकर भरपूर हमला कर दो। ये मुट्ठी भर अफराद हैं, तुम तो इनको पत्थरों से भी मार सकते हो। इब्ने साद ने भी उसकी राय को पसंद किया और एक के मुकाबले में एक जाने से मना कर दिया और इज्तिमाई हमले का हुक्म दे दिया। दुश्मन ने अगरचे पूरी कुव्वत से हमला किया था, मगर हुसैनी जवानों ने बहादुरी के वो जोहर दिखाए कि यजीदियों के छक्के छूट गए। हुसैन इब्ने अली के गिनती के चंद सिपाही सीसा पलाई हुई दीवार की तरह चट्टान बनकर सामने खड़े थे और भरपूर हमला कर देने के बावजूद लश्करे यजीद को पीछे हट जाना पड़ा। दुश्मन की फौज पीछे हटी तो उनके मकतूलीन के साथ एक हुसैनी जवान और नामवर बहादुर हजरत मुस्लिम बिन औसजा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी खाको खून में तड़प रहे थे। हुसैन इब्न अली उनके पास पहुंचे। चंद सांसें अभी बाकी थीं। आपने पुरहसरत निगाहों से देखा और ठंडी आ भरकर फरमाया, मेरे रफीक हमदम, अल्लाह तुझ पर अनवार रहमत की बारिश करे। और फिर ये आयत तिलावत फरमाई, फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। अब दुश्मन का बायां बाजू हरकत में आया। दुश्मनों का मुकाबला अब जनाब ज़ुहैर बिन क़य्युन रजी अल्लाह ताला अन्हु से था। वो उस सिमत के सिपहसालार थे। आपके साथियों ने पूरी जमामर्दी से यजीदियों के दबाव को रोका और बढ़ बढ़ कर हमले शुरू कर दिए और जनाब ज़ुहैर बिन क़य्युन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपना घोड़ा सबसे आगे बढ़ा लाए। दूसरी तरफ इब्ने साद अपने जवानों को इश्तियाल दे रहा था। ज़ुहैर ने उसे मुखातिब करके फरमाया, ए सईद बाप के शक्की बेटे, अब भी बाज आ जाओ और इमाम से अपने गुनाहों की माफी मांग ले। मैं देख रहा हूं कि जहन्नुम की आग तुझे अपनी लपेट में लेने के लिए बढ़ रही है। इब्ने साद ने कहा, ज़ुहैर तुम एक बहादुर आदमी हो, मैं तुम्हारी कदर करता हूं, इसलिए मेरा कहना मानो और मुझे मशवरा देने के बजाय अपने लिए सही रास्ते का इंतखाब करो। तुमने कई साथियों का हशर देख लिया है, अब चंद लम्हों बाद तुम्हारा ये गर्म और जवान जिस्म ठंडी लाश बन चुका होगा। मेरा कहा मानो और मेरे साथ आ जाओ। जनाब ज़ुहैर बिन क़य्युन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए इब्ने साद, तू पागल हो गया है। हुकूमत के लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। अभी आपकी गुफ्तगू यहां तक पहुंची थी कि यजीदी लश्कर की तरफ से एक तीर आया और आपके जिस्म को छूता हुआ सन से गुजर गया और फिर बराबर तीर बरसने लगे। ज़ुहैर ढाल से तीरों को रोकते हुए और उनकी जद से बचते हुए आगे बढ़ते रहे और करीब जाकर इस कदर जोर से हमला किया जैसे भूखा बाज शिकार पर झपटता है और फिर मुतअद्दिद दुश्मनों को फिन्नार करने के बाद दाखिले बहिश्त हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब अब्दुल्ला और जनाब अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हुम बनु गफ्फार के दो जवान इमाम अली मकाम से इजाजत तलब करके मैदान कारजार में आ गए। नारे तकबीर बुलंद किया और दुश्मनों को तलवार की बाड़ पर रख लिया। जिस तरफ जाते सफ़ें दरम बरम हो जाती। दुश्मनों की तरफ से तीर आया और एक की पुष्ट पर पैवस्त हो गया, दूसरे ने घोड़ा बढ़ाकर तीर का फल खींचकर फेंक दिया और फिर जंग में मसरूफ हो गए और फिर बड़ी जमामर्दी और बहादुरी से लड़ते लड़ते राहिए फिरदौस से बरी हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब सैफ बिन हारिस और मालिक बिन अब्द, ये दोनों भाई मां की तरफ से सगे भाई थे। ये दोनों इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम से जंग की इजाजत लेकर मैदान कारजार में नारे तकबीर बुलंद करते हुए पहुंचे और निहायत शुजात व बहादुरी से लड़ते हुए शमे शबिस्तान मुस्तफ़ा पर निसार हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मैदान करबला में नवासा रसूल की इजाजत से जनाब हुर बिन यजीद अर्रियाही निकलते हैं। हुर की तलवार दुश्मनों का खून चाट रही है। हुर का जिस्म तीरों और तलवारों और नेजों की अन्नियों से छलनी हो चुका है। जख्मों से जिस्म चूर चूर है। उसी हालत में इमाम अली मकाम की जानिब मुंह करके आवाज दी, अदरिकनी या इब्न रसूलुल्लाह, हुसैन मेरी मदद फरमाइए। जवाब में गैब से निदाई, हुर इधर देखो, हुरान जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। किसी बदबख्त का नेजा जनाब हुर के सीने पर पड़ा। जख्म गहरा था, जिस्म गर्म था, गिरने लगे। जैन को थाम लिया, घोड़े की बात को खींचा, इमाम के कदमों में आ गए। शबी रसूल की तरफ यास भरी नजरों से देखकर कहा, मेरे आका, आपके नाना के कदमों में जा रहा हूं, कोई पैगाम दे दें। इमाम अली मकाम ने घोड़े से थाम कर उतारा और फरमाया, हुर
उस बेकस पनाह के हुजूर हुसैन इब्ने अली का सलाम कह देना, हम भी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। जनाब हुर बिन यजीद के आखिरी लम्हात हैं, आंखें बंद होती जा रही हैं। इमाम अली मकाम ने हुर का सर अपने जानू पर रखा। हुर को दोनों जहान का आराम हासिल हो गया। हुर ने हसरत भरी निगाहों से शहजादा कौनैन को देखा। इमाम अली मकाम की आंखों में आंसू भर आए। ये हुर की खुशनसीबी की इंतहा थी। जिगर गोशाए रसूल की आगोश राहत में लेटा हुआ है और इमाम अली मकाम उसके चेहरे का गुबार साफ कर रहे हैं। हुर ने आंखें खोलकर अर्ज की, या इमाम, रूह निकल जाने के लिए बेकरार है, जख्मों से दर्द के तूफान उठ रहे हैं, लेकिन मैंने सीने से उठने वाली आहों को रोक रखा है ताकि आपकी आगोश राहत का थोड़ा सा और मजा ले लूं। और फिर आखिरी बार हुर ने दर्द में डूबी हुई मुस्कुराहट से इमाम की तरफ देखकर अर्ज किया, या इब्न रसूलुल्लाह, क्या आप मुझ पर राजी हैं? इमाम ने फरमाया, हुर, हम तुम पर राजी हैं, खुदा तुझ पर खुश हो और तुझे खुश रखे। ये आखिरी गुफ्तगू थी। जनाबे हुर बिन यजीद ने कलमा शहादत पढ़ा और जान जाने आफरीन के सपुर्द कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैदान करबला में हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा है। जनाब अब्दुल्ला बिन उमैर की लाश के पास उनकी बीवी उम्मे वहब बैठी हुई थी कि शिमर लईन ने उसको भी तलवार मारकर शहीद कर दिया। इमाम अली मकाम के साथी जनाब हनफी इस परवाने हुसैन ने अपने जिस्म को इमाम अली मकाम की ढाल बना रखा था, क्योंकि दुश्मनों की तवज्जो के मरकज खास नवासे रसूल थे। तीरों की ज्यादा बारिश इधर ही हो रही थी। तीरों की उस बरसात में परवाना शब्बीर जनाब हनफी आपके आगे खड़े थे। इमाम अली मकाम ने कई बार उनको पीछे करना चाहा, मगर वो आपके आगे खड़े हो जाते। जनाब हनफी का पूरा जिस्म तीरों में पिरोया जा चुका था और इसी तरह तीर खाते हुए ये परवाना हुसैन इब्ने अली वासले फिरदौस से बरी हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यजीदी लश्कर की तरफ से हल मिम मुबारज की सदाए पैहम आ रही है। इधर इमाम अली मकाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के हुजूर चार खूबरू नौजवान दस्त बस्ता खड़े होकर मैदान में जाने की इजाजत तलब करते हैं। ये चारों हजरत अब्बास इब्ने अली के हकीकी भाई हजरत अब्दुल्ला, हजरत अबू बकर, हजरत मोहम्मद और हजरत उस्मान पिसराने शेर खुदा अलीउल मुर्तजा हैं। इनकी मां उम्मुल बनीन इनके साथ आई हैं। शिमर उनके सगे भाई का बेटा था। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है कि बहन के बेटे इमाम अली मकाम हुसैन इब्ने अली पर जाने कुर्बान कर देने के लिए बेताब हैं और भाई का लईन बेटा इमाम अली मकाम को शहीद कर देने के लिए बेकरार है। ये इमाम हुसैन पर कुर्बान होते हैं और वो आपका सर अक़दस काटता है। ये वही चारों शहजादे हैं जिनकी मां और भाई अब्बास समेत 6 अफराद के लिए शिमर इब्ने ज़ियाद से अमाननामा लिखवा कर लाया था और इन्होंने वो अमाननामा ठुकरा दिया था और कहा था, बेवकूफ, हमें तू अमान देता है और इब्ने रसूल को कत्ल करना चाहता है। और अब ये उस वक्त के मुंतजिर हैं कि शहजादा ज़हरा बतूल पर जाने निसार करके अपने बाप अलीउल मुर्तज़ा के दरबार में सुरखरू हो जाएं। इमाम अली मकाम हुसैन इब्ने अली ने फरमाया, हैदर के बेटो, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। तुम सब भाई होने का हक अदा कर रहे हो। तुम सब मेरे इम्तिहान में बराबर के शरीक हो। तुम्हारी मुकद्दस कुर्बानियां लोहे आलम पर नक्श फिल हजर बनकर दुनिया वालों को हमेशा दरसे अखुवत देती रहेंगी। हम सब बहुत जल्द एक ही मकाम पर जमा होने वाले हैं, मगर मेरा ये इम्तिहान किस कदर सब्र आजमा है कि मैं अपने भाइयों को ज़िबा होते देख रहा हूं। इमाम अली मकाम की शफकत आमेज गुफ्तगू सुनी तो चारों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने इंतहाई रिक्कत से दरबार हुसैन में अर्ज किया, या इमाम, ये आपका करम है जो हम गुलामों पर इस कदर शफकत फरमा रहे हैं। हमारे हक के गुलामी को अखुवत का नाम देना आपकी बंदा परवरी है, वरना हम तो अब भी आपको इमाम और ख़ुद को ग़ुलाम ही समझते हैं। आप इब्ने रसूल हैं, शहजादा बतूल हैं, जन्नत के जवानों के सरदार हैं और हमारे ताजदार हैं। हमारे लिए ये फ़ख्र ही क्या कम है कि आपके अज़म पर फ़िदा होने के सिले में क़यामत के दिन आपके परचम के नीचे हमें जगह नसीब होगी। या इमाम, दुश्मन बार बार आवाज़ दे रहा है, हमें इजाज़त दीजिए ताकि हम आप पर निसार होने में सबकत हासिल कर सकें।
आपने सबकी तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा और अलविदा कहकर दुआ के लिए हाथ उठा दिए और बारगाह खुदावंद कुद्दूस में अर्ज की, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे भाइयों की जानों का नजराना कबूल फरमा ले। शेर खुदा के शेर एक एक करके मैदान में जाते हैं और जोर से दुश्मनों की सफों को दरम बरम कर देते हैं। हैदर का एक एक शेर यजीद की सैकड़ों लुमड़ियों पर भारी है। एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा मैदान जंग में कुव्वते हैदरी के वो जौहर दिखाते हैं कि दुश्मनों को पसीना आ जाता है। जनाब अब्बास एक भाई का जंगी कारनामा मुशाहिदा करते हैं, फिर दूसरे का, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहते जा रहे हैं। चारों भाई यके बाद दीगरे मुतअद्दिद दुश्मनों को कत्ल और जख्मी करने के बाद बारगाए हैदर करार में पहुंच जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन चारों के बाद बरादरान मुस्लिम जनाब अब्दुल्ला बिन अकील, अब्दुल रहमान और जाफर बिन अकील एक एक करके यूं दादे शुजात देते हैं कि यजीद के लश्करी शाख बैद की तरह कांपने लग जाते हैं। तलवारें चल रही हैं, तीरों की बारिश हो रही है, नेज़े तने हुए हैं, जमीन शोलाबार होती जा रही है, सूरज मुश्ताइल होता जा रहा है। तलवारों की झनकार में हुसैन का एक एक मुजाहिद हक के जिहाद अदा करते हुए इम्तिहान हुसैन में शरीक होता जा रहा है। जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं और हुसैन के सिपाही एक एक करके अंदर दाखिल होते जा रहे हैं। इमाम अली मकाम के साथी एक एक करके जामे शहादत नोश करते जा रहे हैं। मैदान कारजार में शुहदाए करबला की लाशों के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। फातिमा का लाल अपने इम्तिहान का एक एक पर्चा निहायत कामयाबी और कामरानी के साथ हल करके मुमतहिने हकीकी के दरबार में पेश करता जा रहा है। आपने कई बार मैदान कारजार में जाने का इरादा फरमाया, मगर आपका कोई न कोई फिदाई बढ़कर हक के जानिसारी अदा कर देता। अब आपने फिर मैदान में जाने का इरादा फरमाया तो एक नोखेज फूल आपके सामने आ गया। 15-16 साल के खूबरू हाशमी शहजादे को देखकर यूं मालूम होता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया है। ये चांद का टुकड़ा कासिम इब्ने हसन इब्ने अली है, जो अपने चचा जान पर फिदा होने के लिए इजाजत तलब करता है। हुसैन इब्ने अली ने फरमाया, कासिम, मैं तुझे कत्ल होने की इजाजत नहीं दे सकता। मुझे अब किसी नए इम्तिहान में न डालो और वापस खैमों में चले जाओ। मैं तुमसे पहले जालिमों के हाथों भाई हसन की 2 खूबसूरत तस्वीरों के टुकड़े करवा चुका हूं। अब ये मेरे बस में नहीं कि मैं तुझे भी मौत के मुंह में भेजकर अपने भाई की औलादे नरीना को खत्म करवा दूं। मेरे लाल, तुमसे मेरे भाई की नस्ल शुरू हुई है। जनाब कासिम ने चचा जान की ये फैसला कुन गुफ्तगू सुनी और तड़प कर रह गए और अर्ज किया, चचा जान, काश मेरे बाबा इस वक्त मौजूद होते तो मुझे इस महरूमी का मुंह न देखना पड़ता। मेरे चचा, मैं छोटा ही था कि दाग यतीमी लग गया। दुश्मनों ने मेरे बाप को जहर दे दिया। आपकी पनाह में आने के बाद मुझे कभी महसूस नहीं हो सका कि मैं यतीम हूं। मैंने हमेशा यही महसूस किया कि मेरा बाप जिंदा है। चचा जान, मेरी जान ओन मोहम्मद से ज्यादा कीमती नहीं। अगर उन्हें आप पर फिदा होने की इजाजत मिल सकती है तो फिर मुझको महरूम न किया जाए। इमाम अली मकाम ने भतीजे का यह जज्बा ईसार और दर्द में डूबा हुआ कलाम सुना तो आप मुस्तरिब हो गए और फरमाया, मेरे लाल, तुम्हारी गुफ्तगू ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए हैं। मैं तो यह सोचता हूं कि मैं भाई हसन को जवाब क्या दूंगा कि उसकी आखिरी निशानी भी आंखों के सामने ज़िबा करवा ली। तुम्हारी मां तुम्हारे फिराक में क्या करेगी? तुम्हारी फुफ्फी का क्या हाल होगा? कासिम ने अर्ज किया, चचा जान, अगर खुदा न खास्ता मुझे आप पर निसार होने का मौका न मिल सका तो मैं अपने बाप को क्या जवाब दूंगा? रहा मेरी मां का परेशान होना तो मैं उनसे इजाजत लेकर आया हूं, फुप्पी जान से मिलकर आया हूं। उन दोनों ने ही मेरी कमर में मेरे अब्बा जान हसन इब्ने अली का पटका बांधा है। अम्मी जान ने तलवार मेरी गर्दन में खुद हमायल की थी और फुफ्फी जान ने फरमाया था, कासिम, अब तुम भी मुझे भाई जान के सामने सुरखरू कर दो। इमाम अली मकाम चंद लम्हे खामोश हुए और फिर इजाजत मरहमत फरमाई। उधर फौजे यजीद हल में मुबारिज के नारे लगा रही थी, इधर जनाब कासिम बिन हसन मैदान कारजार में तशरीफ लाए। अली के शेर का हलक
प्यास की शिद्दत से सूख कर कांटा हो चुका था। बार बार लबों पर जुबान फेरते हैं मगर ला हासिल। जुबान लबों से ज्यादा सूखी हुई है और लब जुबान से ज्यादा खुश्क हैं। बावजूद उस शिद्दत की प्यास के अली के लाल का लाल मैदान कारजार में इस तरह चमक रहा था जैसे आफताब जमीन पर आ गया हो। इब्ने साद की तरफ से एक जवान मुकाबले के लिए निकला तो उसने रोक दिया और सिपाही शाम के एक आला अफसर को हुक्म दिया, अर्जुक, इस जवान का मुकाबला तुम करोगे। अर्जुक ने सुना तो उसके तन बदन में आग लग गई और गुस्से पर काबू पाते हुए कहने लगा, इस बच्चे के मुकाबले में जाना मेरी तौहीन है। शाम से आए हुए लश्कर में मेरे 4 बहादुर और नौजवान बेटे हैं, मैं उनमें से किसी एक को मुकाबले में भेज देता हूं। और फिर उसने अपने सबसे छोटे बेटे को जाने का इशारा किया। उसका यह बेटा किसी हाथी से कम नहीं था, बड़ा लहीम शहीम, घोड़ा उसके बोझ तले दबा जा रहा था। इमाम अली मकाम ने जनाब कासिम के मुकाबले में एक इफरीत को आते देखा तो दुआ के लिए हाथ उठा दिए। उसने आते ही इस अंदाज से तलवार का वार किया जैसे किसी दरख्त की पतली सी शाख को काट कर जमीन पर फेंक देना होता है। जनाब कासिम ने उसके वार को रोका जिससे आपकी ढाल टूट गई। इमाम अली मकाम ज्यादा दूर नहीं थे, आप सब कुछ मुलायजा फरमा रहे थे। आपने एक ढाल देकर मोहम्मद बिन अनस को फरमाया कि कासिम को पहुंचा दो। इधर एक दूसरे पर चंद एक वार हो चुके थे और अर्जुक के बेटे को महसूस हो चुका था कि उसका मुकाबला किसी आम बच्चे से नहीं। ढाल मिल गई तो इमाम कासिम ने खुद को अच्छी तरह संभाल लिया। अर्जुक के बेटे ने नेजा चलाया, आपने घोड़े को पीछे कर लिया और फिर घोड़े को ताजियाना लगाकर इतनी तेजी से दुश्मन पर वार किया कि उसे बचाव की मोहलत ही न मिल सकी। कासिम का नेजा अर्जुक के बेटे की जिरा की कड़ियों को तोड़कर उसके सीने में लगा और पुश्त के पार हो गया। आपने पूरी कुव्वत से नेजा खींचा तो वो मट्टी के तोदे की तरह जमीन पर गिर पड़ा। आपने उसके नेजे और तलवार पर कब्जा कर लिया और घोड़े को मोड़कर इमाम अली मकाम के हुजूर आ गए। इमाम ने अपने भतीजे की पेशानी को बोसा देकर फरमाया, मेरे भाई के बेटे को ऐसा ही होना चाहिए था। मेरे चांद कासिम, खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो। जनाबे कासिम ने अर्ज किया, चचा जान, काश इस वक्त पानी के चंद घूंट मिल जाते तो फिर मैं आपको अपनी बहादुरी के जौहर दिखाता। इमाम ने जज्बात पर काबू पाते हुए फरमाया, मेरे लाल, पानी तो अब तुम्हारे दादा जान और तुम्हारे अब्बा जान चश्मे कौसर से ही पिलाएंगे। जनाब कासिम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, और दोबारा मैदान करबला में तशरीफ ले गए। इब्ने साद ने अर्जुक को उसके बेटे की मौत का मंजर दिखाते हुए तंज किया कि काश तुम किसी बच्चे से जंग करने को अपनी तौहीन न समझते। अर्जुक को तो बेटे की मौत ने पहले ही आतिशफिशा बना रखा था कि उसका दूसरा बेटा मैदान में पहुंच गया। यह पहले से भी बड़ा था, इसलिए कदोकामत में भी उससे बड़ा हुआ था। उसने आते ही इमाम कासिम की शान में बकवास शुरू कर दी, लेकिन आपने कोई जवाब न दिया और खामोशी से उसकी तरफ देखते रहे। अर्जुक का बेटा बके जा रहा था कि तुमने मेरे शेर जैसे बहादुर भाई को कत्ल किया है, मैं तेरी एक एक बोटी के 100 टुकड़े करके तुम्हारा कीमा बना दूंगा। जनाबे कासिम ने बड़े पुरवकार अंदाज में सिर्फ इतना फरमाया कि तुम चीखते क्यों हो, इंशाअल्लाह तुम भी जल्द ही अपने भाई से मुलाकात कर लोगे। वो जला हुआ तो था ही, और भी मुश्तइल हो गया, मुंह से झाग निकलने लगी और अंधाधुन वार पर वार कर रहा था। इमाम कासिम उसके हर वार को बेकार करते जा रहे थे। जब उसके कई वार जाय हो गए और फिर उसने जोर से ऐसा वार किया जिसको जनाब कासिम ने रोक तो लिया, मगर आपके शाने पर हल्का सा जख्म आ गया। फिर क्या था, हैदर के शेर का शेर बिफर गया और घोड़े को चक्कर देकर दुश्मन के घोड़े की गर्दन के नीचे नेजा मारा। घोड़ा तड़पा और घुटनों के बल गिर पड़ा। अर्जुक का बेटा अपना तवाजुन बरकरार न रख सका। जनाब कासिम ने घोड़े से छलांग लगाई और उसके उठने से पहले ही उसके शाने पर पूरी कुव्वत से तलवार का वार कर दिया। जख्म लगते ही उसके मुंह से एक चीख निकली और वो पूरी कुव्वत से उठना ही चाहता था कि आपने उसके जिस्म से गर्दन का बोझ उतार दिया। इब्ने साद ने अर्जुक को इस बार तंज नहीं किया था। फिर अर्जुक को बेटों की मौत ने वहशी बना दिया। वो गुस्से से कांप रहा था और मैदान में पहुंच जाने के लिए बेकरार हो रहा था कि उसका तीसरा बेटा, जो पहले दोनों से भी ज्यादा ताकतवर था, जनाब कासिम के सामने आया। फिर चंद लम्हों के बाद वो भी वासले जहन्नुम हो चुका था। फिर
ارزق سے پہلے ہی اس کا چوتھا بیٹا بھی پہنچ گیا اور اس کا حشر بھی پہلے تینوں سے مختلف نہیں تھا، اور جناب قاسم کی تلوار کا یہ حال تھا کہ وہ ان کو کاٹتی چلی جا رہی تھی۔ اب ارزق کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ غصے کے ملے جلے اثرات اور جذبات اسے پاگل بنا رہے تھے۔ اس نے پوری قوت سے گھوڑے کو چابک رسید کیا اور شہزادہ حسن کے سامنے آ گیا۔ امام علی مقام نے دور سے اس کے تیور دیکھے اور بارگاہ خداوند قدوس میں عرض کیا، پروردگار قاسم کی اس درندے سے حفاظت فرما۔ ادھر اس نے آتے ہی جناب قاسم کو للکارا، لڑکے تیار ہو جا، ملک الموت تیرے سر پر آن پہنچا ہے۔ آپ خاندانی وقار کے ساتھ اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے اور وہ بڑے زور و شور سے رجز پڑتا جا رہا تھا، میں دمشق کا پہلوان ہوں، شام و عراق کے بڑے بڑے بہادر میرا نام سن کر کانپ جاتے ہیں، میری تلوار اٹھتی ہے تو پھر دشمنوں کا خون چاٹ کر ہی دم لیتی ہے، میرا نام ارزق ہے، تم میرے 4 بہادر اور شہزور بیٹوں کے قاتل ہو، میری تلوار اب ان کا خون بہا مانگتی ہے، تمہیں قتل کرنے کے بعد اہل بیت کے ایک ایک فرد کو موت کی نیند سلا کر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، میں جنگی چالوں کا سب سے زیادہ ماہر ہوں، بڑے بڑے سپہ سالار میرے مشوروں پر عمل کر کے دشمن پر فتح یاب ہوتے ہیں۔ وہ یہ بکواس کر ہی رہا تھا کہ امام قاسم نے جنگی چال چلتے ہوئے اسے کہا کہ اپنے گھوڑے کی زین کی طرف دیکھو۔ اس نے جیسے ہی نیچے مڑ کر دیکھا، امام نے فوراً حملہ کیا اور وہ زمین پر گر گیا، کہنے لگا، لڑکے تو نے مجھے دھوکے سے قتل کیا ہے۔ امام علی مقام نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، اس لیے کہ تم جنگی چالوں کے بہت ماہر ہو۔ چند ہی لمحوں میں ارزق کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا تو ابن سعد کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ ایک ایک مقابلے کے لیے نہ جاؤ اور اکٹھے قاسم پر حملہ کر دو۔ ان حالات میں کیا ہو سکتا تھا؟ ہاشمی شہزادے کی تلوار اپنے جوہر تو دکھا رہی تھی مگر ایک دستہ ان پر ٹوٹ پڑا، پھر ایک کاری زخم بھی لگ گیا۔ آپ گھوڑے کی زین سے گر پڑے جس میں نازنی پر 27 زخم آ چکے تھے۔ آپ زمین پر تڑپ رہے تھے اور ایڑیاں رگڑتے ہوئے فریاد کر رہے تھے، یا ابن رسول اللہ ادرکنی، یا عمہ ادرکنی۔ اپنا کام کر کے سپاہی یزید کا بادل چھٹ چکا تھا۔ امام علی مقام بھی قریب پہنچ گئے، بھتیجے کی پرعلم ندا سنی تو تڑپ کر رہ گئے اور فرمایا، بیٹا میرا تو امتحان ہے، میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اور پھر عم محترم کے ہاتھوں میں شہزادہ حسن نے دم توڑ دیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ نے لاش کو کندھے پر اٹھایا اور ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے واپس تشریف لائے۔ نہ ہو بپا کیوں قیامت کا شور خیموں میں کہ لاش قاسم و اکبر کے لا رہے ہیں حسین۔ جناب عباس پرچم اسلام اٹھائے ہوئے اہل بیت اطہار کے خیموں کا پہرا دے رہے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام ساتھیوں کو ترتیب دے رہے ہیں۔ پردہ نشینوں نے عباس کو پیغام دیا، امام کو اندر بھیجو۔ امام خیمے میں تشریف لائے تو بہن زینب نے عرض کیا، خدا آپ کو اس امتحان میں کامیاب فرمائے، بہن بے بس ہے، کاش عورتوں کو اذن جہاد ہوتا تو میں اپنے بھائی پر نثار ہو سکتی، فاطمہ کی بیٹی ہوں، دوسری عورتوں کی طرح باہر بھی نہیں نکل سکتی، غریب الوطن ہوں، پردیس میں اپنے بھائی کا صدقہ بھی نہیں اتار سکتی، آپ سخی ماں کے بیٹے ہیں، اس مشکل وقت میں بھی آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں، میری التجا قبول فرمائیں۔ امام علی مقام نے بہن کی درد میں ڈوبی ہوئی گفتگو سنی تو بے قرار ہو گئے، فرمایا، پیاری بہن حکم فرمائیں۔ بے شک حسین غریب الدیار اور خود مشکلوں میں گرفتار ہے مگر اپنی بہن کے حکم کو نہیں ٹال سکتا۔ سیدہ زینب نے سنا تو ہلکی سی تازگی چہرے پر آ گئی، آپ نے پکار کر کہا، آ جاؤ۔ آپ کی آواز سن کر 2 چھوٹے بچے اپنے قد سے بھی بڑی تلواریں زیب تن کیے حاضر ہو گئے۔ امام علی مقام نے بچوں کو تلواریں لیے دیکھا تو فرمایا، زینب یہ کیا ہے؟ جناب زینب نے فرمایا، بھائی یہی التجا تھی کہ آپ میری چھوٹی سی نظر قبول فرما لیں، مجھ پر دیسن کے پاس اس وقت بھائی کا صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس یہی 2 بچے ہیں، سو بھائی کا صدقہ اتار رہی ہوں، کچھ تو رد بلا ہو جائے گا۔ امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور رو کر فرمایا، زینب حسین کے دل کو مزید زخمی نہ دیتی ہوں، باپ علی کی سخاوت کا واسطہ دیتی ہوں،
नाना जान की नूरानी दस्तार का वास्ता देती हूं, मेरा ये नाचीज हदिया और छोटा सा नजराना कबूल फरमा लो। भाई हुसैन, अगर आपने इन बच्चों को इज़्न शहादत न दिया तो ये नाना अली और फातिमा को क्या मुंह दिखाएंगे, जाफर तैयार दादा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे जाएंगे। भाई, मैं आपको उस खुदा का वास्ता देती हूं जिसके हुक्म पर आप ये मुसीबतें उठा रहे हैं, मेरी कुर्बानी कबूल कर लो। बहनों का तो भाइयों पर बहुत हक होता है और आप तो सखी माँ और सखी बाप के बेटे हैं, मुझे महरूम न करो। इमाम अली मकाम ने बच्चों की तरफ देखा, बच्चे दौड़कर कदमों में गिर पड़े। अम्मी ठीक कहती हैं मामू जान, हम अली के नवासे और जाफर तैयार के पोते हैं, हम मैदान में जाकर अभी आपके सारे दुश्मनों को कत्ल कर देंगे, आप बिल्कुल फिक्र न करें, आप अम्मी की बात जरूर मान लें। मामू जान देखें हमारी तलवारें कितनी तेज हैं। नवासे रसूल ने बच्चों की मुजाहिदाना गुफ्तगू सुनी तो बहुत मुतासिर हुए। बच्चों ने माँ की याद कराई हुई गुफ्तगू दोहरा दी और मामू जान को मना लेने में कामयाब हो गए। इमाम अली मकाम बच्चों को इजाजत देकर वापस तशरीफ ले आए। सैयदा ज़ैनब ने बच्चों को खूब आरास्ता किया, पानी के बगैर खुश्क जुल्फों में कंघी की, सुरमा लगाया, छोटे छोटे 2 पट्टे बांधे। अली की बेटी ने अपने हाथ में तलवार लहरा कर दिखाई कि इस तरह जाते ही दुश्मनों पर जोर से चलाना, और फिर सीने से लगाया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सबर सामने आया, फौरन दोनों बच्चों को अलहदा कर दिया और कहा जाओ और जल्दी करो। बच्चे चलने लगे, फिर वापस बुलाया, आगोश में लिया, जल्दी जल्दी उनकी पेशानियों को चूमा और खैमे की ओट में खड़ी हो गई। आप जिगर के टुकड़ों को जाते हुए देख रही थी और फरमा रही थी, मेरे बेटों मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें दरिंदों में भेज रही हूं। मां के दिल के टुकड़ों, मां मजबूर है, खुदा हाफिज, मेरे जिगर पारो, खुदा हाफिज। बच्चे तलवारें लहराते हुए मैदान में गए तो शिमर लईन ने आवाज दी, हुसैन, जवान खत्म हो गए हैं जो बच्चों को भेज रहे हो। इमाम अली मकाम खामोश रहे। औन ने फरमाया, बेवकूफ, हम बच्चे नहीं, हमारे साथ मुकाबला करो, फिर पता चलेगा। मोहम्मद ने कहा, अगर तू इतना बहादुर है तो सामने आ, हम चीर कर रख देंगे। शिमर ने कहा, मैं जानता हूं तुम ज़ैनब के बेटे हो, मगर ज्यादा बहादुर ना बनो, ये अली का घर नहीं, मैदान करबला है। फिर चंद सिपाही उनकी तरफ बढ़ने लगे। बेगैरत हाकिम के बेगैरत सिपाही बच्चों को देखकर वैसे ही शर्म आ जाना चाहिए थी, मगर उनमें तो गैरत और शर्म का नाम भी नहीं था। वो तो वहशत और बर्बरियत और दरिंदगी के पुतले थे। जालिम से जालिम दुश्मन भी बच्चों को देखता तो कहता वापस चले जाओ, मगर शिमर ने उनसे कहा था कि अपने मामू और अम्मी को छोड़कर हमारे पास चले आओ। और बच्चों ने कहा था, मजनून है, पागल है, अहमक है, हम क्यों माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएं, तू कहां का हमदर्द है। बहरहाल बच्चों ने जंग क्या लड़नी थी, हक जिहाद पूरा कर दिया, अपने फर्ज की तकमील कर दी, अपनी माँ का हुक्म मान लिया। पालने वाली ने जाने मांगी थी, उन्होंने बड़े अदब से हंसी खुशी पेश कर दी। फातिमा के दूध की तासीर ही ऐसी है, अली के खून का असर ही ऐसा है, दोनों राय खुदा में शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शिमर ने हुसैन से कहा, अपने भांजों की लाशें उठा लो। इमाम अली मकाम आगे बढ़े, बहन के जिगर के कटे हुए टुकड़े दोनों शानों पर उठाए और बहन के सामने जाकर लिटा दिए। दिल पर इस कदर रिक्कत तारी थी कि बहन को तसल्ली के अल्फाज भी न कहे जा सके। फौरन ही खैमे से बाहर तशरीफ ले आए। जनाब ज़ैनब ने बेटों की शहादत का मंजर पर्दे की ओट से देख लिया था। आप पैकरे सब्र रिजा बनकर सब कुछ देखती रही। मां की ममता अपना रंग जरूर दिखाती है। जनाब ज़ैनब ने जब ओनो मोहम्मद को मैदान में भेजा तो उस वक्त दुख्तर अली का रूप था, और जब बच्चे शहीद होकर खैमे में आए तो आप सिर्फ ओनो मोहम्मद की मां थी। ऐसी मां जिसकी परदेश में उम्र भर की कमाई लुट जाए, जिसकी आरजुओं का बाग उजड़ जाए, जिसकी उम्मीदों का खून हो जाए, जिसकी हरी भरी गोद खाली हो जाए, जिसकी उमंगों का जनाजा निकल जाए, जिसके घर की बहार चली जाए, जिसका घर उजड़ जाए। सैयदा ज़ैनब दोनों के दरमियान लेट गई। खाको खून में डूबी हुई बच्चों की लाशों को दोनों बाहों में लिया तो सैयदा ज़ैनब बेहोश हो गई। होश में आई तो फरमाया, इनको इनके मामू जान के पास भेज दे, वो अपने हाथों से इन्हें दफन कर दे।